Hi guys, good morning and welcome back once again to our channel. Today's video is based on our experiences from Mumbai to Kolkata travel by road, and for which we have already shared our experiences, day-wise experiences and day-wise what we did. Now, this video is going to be based on the same, but we will be giving here basic information about expenses, tolls, your stay cost, food, those kind of stuff which could be helpful for you to decide if you are planning such trip. You have two type of planning in this kind of road trip. Either one way is what we did, like you travel to a destination, stay 1 or 2 days there and explore the tourist places, and travel to next destination, stay 1 or 3 days there, and then you move on to next destination. If you do not have that much time, you just want to complete your journey from Mumbai to Kolkata by road, and you are following same route what we followed, like from Mumbai to Hyderabad, Vizag, then Kolkata. So in that case, the first journey will be from Mumbai to Hyderabad, which is near about 700 kilometers. It obviously depends on where you are staying in Mumbai or from where you are starting. Now there are two possibility, as I mentioned you, that either you will be staying and exploring the city, or you will be moving forward. If you are staying, then you choose your stay near about Hussain Sagar Lake. In that area, it will be easy to move and it will be easy to explore the city. और आप अगर नहीं स्टे करना चाहते हो, देन आप रामोजी फिल्म सिटी के आसपास कहीं पे स्टे ले लो, because then you are not entering into city traffic, so you will save your time. You just get the outer ring road and then you reach to Ramoji Film City area and near about कहीं पे आप stay ले लो, वहाँ से आप next day का journey start करोगे. So this is up to Hyderabad. Next day का journey up to Vizag, it will be around 630 or 620 to 630 kilometer based on your hotel location. मेरा प्रेफरेंस ये है कि जो हमने होटल लिया था जैसे रामकृष्ण बीच के वहाँ पे, फाइनली वो होटल ले लो. तो उसमें क्या होगा कि आप थोड़ा बहुत बीच का एक्सपीरियंस, जो रामकृष्ण बीच है वहाँ पे थोड़ा घूम सकते हो शाम को जाके आपका होटल चेक इन के बाद, या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग खूबसूरत एक सनराइज देख के फिर आपका जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. सो ये रूट में कैसा है कि आप अगर हम लोगों की तरह एक दिन स्टे करते हो वाइजाग, देन नेक्स्ट डे से फॉर एग्जांपल सिमाचलम टेम्पल देख के हम लोगों ने नहीं कर पाए थे, टाइम नहीं था करके. सो अदरवाइज वो करके आप अराकू वैली चले जाओ, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ. बोरा केव करके अराकू वैली, एंड अराकू वैली होके फिर आप स्टार्ट कर दो नेक्स्ट जर्नी कोलकाता के लिए. बट यहाँ पे एक सजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ एक्सपीरियंस, ये सजेशन है आप हम लोगों की तरह कंटिन्यूअस जर्नी मत करो. बिकॉज वो फाइनली ना, मैंने जब ड्राइव कर रहा था मुझे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ. थोड़ा बहुत टायरिंग फील हो रहा था, तो मैंने गाड़ी पार्क करके 2 घंटे का नींद पूरी किया और फिर वापस अगला ट्रैवलिंग चालू किया. जब मैंने गाड़ी पार्क किया ना, उसके बाद इतना खतरनाक टाइप का टायरिंग फील हो रहा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था. उतना मैंने कभी उससे पहले फील नहीं किया था जब हम ड्राइव कर रहे थे या फिर होटल पे रुक रहे थे. कहीं पे भी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ. You are driving either visiting Araku Valley, then one way, or you will be driving from Vizag to Kolkata. Now, this destination or distance would be somewhere around 870 to 900 kilometers. It again depends कोलकाता या वेस्ट बंगाल का कौन सा रीजन पे आप जा रहे हो. अगर आप जो वेस्ट बंगाल का खड़गपुर या मिदनापुर ये साइड पे जा रहे हो तो आपका डिस्टेंस कम होगा. अब अगर प्रॉपर कोलकाता जा रहे हो, जैसे हम लोगों ने नॉर्थ कोलकाता गया था, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो समवेयर अराउंड 870 से 900 के आसपास रहेगा वाइजाग से. तो ये जो डेस्टिनेशन है ना, एक दिन में कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा ट्रैवल टाइम है. और दूसरी रीज़न ये है, रोड कंडीशन उस टाइम पे NH-16 का बहुत ख़राब था. लाइक आप जब ये रूट पे जा रहे हो तो विजयवाड़ा से आप NH-16 को टच करते हो और उसके बाद NH-16 पे ही चलना है आपको. उसका सिचुएशन ऐसा है, आप जितना उड़ीसा की तरफ जा रहे हो उतना रोड ख़राब हो रहा है.
और उड़ीसा में एंटर होने के बाद रोड का धज्जियां उड़ जाते हैं, कुछ नहीं है, रोड का बहुत ही बुरा हाल है। तो गाड़ी का एकदम से 12 बज जाते हैं, ड्राइवर का जो ड्राइव करता रहता है, जो बैठा है उसका भी 12 बजते हैं। बिकॉज आपके पास आपको लॉन्ग जर्नी करना है, तो आपको एक स्पीड भी मेंटेन करना रहता है। आप बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में नहीं चला पाओगे। आप एक 100 किलोमीटर नहीं चला रहे हो, 800 किलोमीटर आपका टारगेट है, 900 किलोमीटर आपका टारगेट है, आपको बाद में ना बहुत बुरा हाल होता है। कैसा है, अप टू बालासोर, उड़ीसा में एंटर करने के बाद से लेकर अप टू बालासोर इतना, फिर भी चिल्का तक थोड़ा बहुत सही है। चिल्का के बाद वाला जो सेक्शन है ना, इतना पैच है, इतना पैथेटिक रोड है, आई स्वेयर। मैंने तो मतलब अभी पता नहीं, मैं सितंबर पे ड्राइव किया था, तो अभी फिलहाल हो सकता है कुछ इम्प्रूव हुआ होगा। अदरवाइज वो बहुत बुरा हाल था उस टाइम पे। जो मैंने उड़ीसा वाला ब्लॉग, जो लास्ट डे का जो ट्रैवल था ना, उसमें थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया। बट ओके, नाउ हम लोगों की तरह अराकू वैली जा रहे हो, देन अगर शाम के टाइम, जैसे हम लोगों ने वहाँ से शाम के टाइम से चालू किया था, मत स्टार्ट करो, स्टे कर जाओ वहाँ पे, बिंदास होटल पे स्टे करके रेस्ट करो। वहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे और भी काफ़ी सारे जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, वो एक्सप्लोर करो। फिर वहाँ से चालू करो, आप भुवनेश्वर तक आ जाओ, भुवनेश्वर स्टे करो, नेक्स्ट डे चालू करो भुवनेश्वर से कोलकाता के लिए, ये सही रहेगा। दूसरा ऑप्शन, आप अगर अराकू नहीं जा रहे हो, डायरेक्टली वाइजैक से कोलकाता आना है आपको, तो मेरा सजेशन ये है, 900 किलोमीटर का टारगेट मत लो। आप 450 के आसपास का टारगेट लोगे तो अराउंड आप विशाखापट्टनम या वाइजैक से आप भुवनेश्वर तक आ पाओगे। भुवनेश्वर आके स्टे करो, भुवनेश्वर पे स्टे करने के बाद फिर आप चालू करो नेक्स्ट डे भुवनेश्वर से कोलकाता के लिए, वो आपके लिए सही रहेगा। दिस इज द प्लानिंग। नाउ कमिंग टू द एक्सपेंसेस और कॉस्ट पार्ट। नाउ एक्सपेंसेस पे ऐसा आप पकड़ो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक तो आपका गाड़ी का आपको माइलेज पता होगा, तो उस हिसाब से आप कितना किलोमीटर ड्राइव करना है वो एक गूगल मैप से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हम लोगों का पेट्रोल का कॉस्ट आया था करीब 13,500 पेट्रोल का कॉस्ट आया था। जहाँ पे आपको क्या हो सकता है कि आप अगर हम लोगों की तरह एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो किसी लोकेशंस को, देन ये करीब 12,000 के आसपास आएगा आपको। तो अपना टोल आया था अराउंड अप टू मुंबई से हैदराबाद 655, देन 605 फॉर हैदराबाद टू वाइजैक एंड वाइजैक टू कोलकाता। ये जो हमने ड्राइव किया था उसमें टोल आया था अराउंड 656 टोटल टोल आया था। मल्टीपल टोल था, 7-8 इंडिविजुअल सेक्शन पे 7-8 टोल था। और आप इंडिया पे ड्राइव कर रहे हो तो उसमें कैसा है ना, एक मोटा मोटा हिसाब है कि पर किलोमीटर 1 रुपी हाईवेज का टोल आप पकड़ के चल सकते हो। सो हमको अराउंड 2000 के आसपास, मतलब 1916 ऐसा कुछ आया। हमें कुछ मिसलेनियस चार्जेस भी आया था, लाइक पार्किंग, देन लोकल ट्रांसपोर्टेशन अगर कुछ अवेल कर लिया, फॉर एग्जांपल रोपवे वगैरह, या फिर एंट्री फीस जो आप लोकेशन विजिट कर रहे हो वहाँ पे अगर एंट्री फीस देना है, तो वो सब मिला के हम लोगों को अराउंड 3500 के आसपास वो आया था। तो ये भी आपका कॉस्ट से डिडक्ट हो जाएगा आप अगर नहीं ये सारे जगह मतलब ये सब नहीं करते हो तो। फूड का कॉस्ट आएगा पर पर्सन 500 to 700 पर डे मैक्सिमम। सो कितना डेज आप रुक रहे हो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। का स्टे 2 ऑक्यूपेंसी का 1500। हमने इवन 3 ऑक्यूपेंसी मिल गया था जो रामकृष्ण बीच के वहाँ पे जो हमने स्टे किया था, 1400 रुपये में हमें 3 ऑक्यूपेंसी मिल गया था न्यू सोनर बांग्ला में नॉन एसी, और 1500 में हमें एसी मिल गया था हैदराबाद में डबल ऑक्यूपेंसी का। देन आप एज ए समरी एक्सपेंसेस 12,000 to 13,000 आपका पेट्रोल का कॉस्ट आता है। देन आपका टोल का कॉस्ट आता है अराउंड 2,000, एंड देन मिसलेनियस कॉस्ट आप अगर रुक रहे हो तो 3,500 के आसपास, 3,500 से 4,000 के आसपास आपको मिसलेनियस कॉस्ट आएगा, मतलब पार्किंग वगैरह, लोकल एंट्री फीस, ये वो सब मिला के। स्टे का कॉस्ट आएगा डबल ऑक्यूपेंसी 1500 के आसपास मैक्सिमम आएगा, मैक्स टू मैक्स 1500 से 2000 स्टे का पर नाइट। एंड फूड का कॉस्ट आएगा आपका 500 to 700 पर पर्सन पर डे। उस हिसाब से आप बाकी का कैलकुलेशन आगे कर सकते हो। फ्यू टिप्स while you are planning for such a long drive or long road trip. Now in that case, please make sure you are spending your nights at good hotel and taking proper rest. 1. Number 2,
whenever you are crossing states, there must be COVID related guidelines. So please do check each and every state's rules while you have to cross a border mostly. And then also within city there will be some different rules related to COVID depending on the situation while you are driving. Number 3, you will get plenty of food options like highway dhabas and restaurants. But मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो उड़ीसा वाला सेक्शन था ना, उसमें थोड़ा कमी महसूस हुआ मुझे। रात भर हमने ड्राइव किया, बहुत सारे कुछ ढाबा वगैरह कुछ भी नहीं दिखा हमें, जो कि हमें बहुत अच्छे से मिल जाता है जब हमने ड्राइव किया था वापस ये वाले रूट से, छत्तीसगढ़ वाले रूट से जब हमने वापस मुंबई आया कोलकाता से, वो टाइम पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल गया था। बट अप टू वाइजग दिस वाज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस था। बट वाइजग के बाद जब विजयनगरम से श्रीकाकुलम होके हम उड़ीसा की तरफ जा रहे थे, ना तो आंध्र सेक्शन पे आया बहुत ज़्यादा कुछ ढाबा वगैरह, ना तो हमें उड़ीसा में मिला। उड़ीसा में मिला भी तो कैसा, टी स्टॉल्स वगैरह 2-4 मिल गया था, या जहाँ पे कुछ आपको चिप्स वगैरह वो सब मिल जाएगा, बट प्रॉपर खाने का जो अरेंजमेंट है वो नहीं मिला था हमें। वो हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग कहीं पे जो टाउन या सिटीज़ वगैरह आ रहे थे वहाँ पे मिल रहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मेक श्योर यू आर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स एंड you are following the speed limits. I have a bad experience with this in Odisha only. मेरा ऐसा हुआ था उड़ीसा में, मैं वो पैची रोड था, खराब रोड था, बीच में 1-2 किलोमीटर ज़्यादा मतलब सही लगा था, तो मैंने 80 पे ड्राइव किया और वहाँ पे कितना स्पीड लिमिट था 76, दैट इज़ ऑल्सो वियर्ड। और उसके बाद जिसने मेरा चालान किया, ई चालान किया, उसने 7000 का चालान किया, 2000 फॉर ओवर स्पीडिंग एंड 5000 फॉर ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। They did not check me, stop me, they did not check license anything, just उनका मन पे आया तो उन्होंने कर दिया। बाद में वहाँ पे जो मेल आईडी था, जो ऑफिसर का, पुलिस ऑफिसर का मेल आईडी था, वो मेल आईडी फेक था, उसमें मेल गया नहीं, बाउंस हुआ जब मैंने मेल करके पूछने का कोशिश किया। फिर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनको मैंने मेल किया, तो उनका फर्स्ट मेल पे रिवर्ट आया कि आप या तो उड़ीसा RTO पे कनेक्ट करो या फिर आप सारे डॉक्यूमेंट भेजो। मैंने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज दिया। उसके बाद से नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कोई रिस्पांस नहीं है, ज़ीरो रिस्पांस। मुझे बुरा क्या लगा था, ओवर स्पीडिंग का चालान सही है, जो भी है 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा मैंने चलाया, मतलब 76 की जगह मैं 81 82 पे चलाया, दैट इज़ ओके, मैं मानता हूँ। बट दूसरा जो विदाउट लाइसेंस का लगा, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ऊपर से ये भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि जो पुलिस ऑफिसर चालान कट रहे हैं और उसका चालान पे जो डिटेल्स है, दैट डिटेल्स इज फेक। नोबडी इज क्रॉस चेकिंग इन उड़ीसा ऑल्सो, मीन्स उड़ीसा जो भी है RTO का, जो भी अथॉरिटीज़ है, वो भी चेक नहीं कर रहे कि उनका जो पुलिस ऑफिसर है वो कैसे काम कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी पैथेटिक। माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू क्रॉस चेक ऑल द इंफॉर्मेशन यू आर शेयरिंग टू पब्लिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने टोल गेट्स है फास्टैग बेस्ड है मोस्टली, तो आप फास्टैग सफिशिएंट रिचार्ज करके रखो, मतलब 2000 या मोर देन 2000 आप रिचार्ज करके रखो, तो आपको आसानी से ये सारे दिक्कत नहीं होगा कहीं पे जाके रुक के रिचार्ज करना, वो सारे मतलब ये नहीं आएगा। और दूसरी है कि जब आप बहुत 2-3 जगह मुझे मिला था, जैसे कि राजमंड्री से पहले जो गोदावरी रिवर का जो ब्रिज आते हैं, वो ब्रिज में चढ़ने से पहले जो टोल टैक्स था वहाँ पे फास्टैग नहीं लगा हुआ था वो टाइम पे, एंड दे आर लिटरली आस्किंग यू मनी, कैश ऑनली टू पे। सो वो मैंने कैश ही पे किया था उस टाइम पे। और एक दो जगह पे भी ऐसा छोटा मोटा इंसिडेंट था, अदरवाइज आप फास्टैग से चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा टोल का। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन आर यूजफुल फॉर यू। अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन है या फिर आपको कोई फीडबैक है वीडियो अबाउट आवर जर्नी, प्लीज़ कमेंट इन और पुट इट इन कमेंट। का जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो भी आप कमेंट पे डाल दो। मुझे जितना इन्फॉर्मेशन है, जितना एक्सपीरियंस मेरा है, आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कर लो सब्सक्राइब कर लो।